move to Pakistan versus Bangladesh, Pratik, now. And Bangladesh are having a lot of turmoil at home. They just lost the hosting rights for T20 Women's T20 World Cup also to UAE, and it's still they have the old guard of Shakib and Rahim touring this. And actually, today I was stunned by a fact that Rahim is actually playing his 88th Test match, and he can become the first Bangladeshi player to reach 100 tests. So I just want to know your opinion about any chances for Bangladesh. Also from Pakistan side, Saim Ayub has been shown trust. And yeah, I forgot to tell one thing. From Bangladesh, there is a bowler called Nahid who is supposedly Hmm. bowling at 150 kilometer per hour. So Shanto was talking about him. He's probably going to make his debut also tomorrow. Yeah, So I'm excited yeah, to I'm see excited Nahid. for that. उसका preview में पढ़ा थोड़ा this new fast bowler. Also, overall fast bowling quality for Bangladesh has improved a lot. मतलब अपन सिर्फ ऐसा बात नहीं कर सकते कि भाई नसीम शाह हम इक्वली इंटरेस्टेड है ये देखने में कि क्या बांग्लादेश के पेस बॉलर्स भी कुछ अच्छा करेंगे बिकॉज उनकी एबिलिटी बहुत अच्छी है। हमने न्यूजीलैंड में देखी, वहां पे वो लोग जाके अच्छा स्विंग बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे थे। तो यार ऑन पेपर तो पता नहीं यार, बांग्लादेश भी ऐसा लगता है कि कम्पीट कर सकती है, बट हिस्ट्री लाइज इन फैक्ट दैट दे हैव नेवर बीटन पाकिस्तान। और उनका एक बार बेस्ट चांस था जो वो फेमस टेस्ट मैच जहाँ पे इंजमाम उल हक अकेला लड़ा था Yes, और किसी yes. तरह हार के बाहर लेके आया था पाकिस्तान को। एंड एक और अनदर थिंग इज मैन, आई वांटेड टू आस्क यू, इफ यू आर लिटन दास, it this series has to be either you will badly fail or you will come out against all obstacles and show the world what you're made of. So what are your thoughts about him? Like, should he be playing this series? And if he's playing, what are your prediction on his performance? I'm not sure if he's going to play, but if he plays, I expect decent performance from him. But I'm more interested in the combination actually, Pratik. Like, so Hmm. both the teams have read the pitch totally differently. I mean, पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो ऑल आउट पेस अटैक होने वाला है एंड व्हाट दे हैव डन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई वाज जस्ट हियरिंग शान मसूद्स प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आमिर जमाल इज इंजर्ड नाउ so what they have done is they have Naseem and Shaheen, but to replace Amir Jamal they have brought in a similar kind of hit the deck bowler from Pakistan Hmm. Super League, and he has a good domestic record also. His name is Mohammad Ali. So my eyes will be on Muhammad Ali tomorrow. Hmm. How well he does, and it will be an उसका भी all डेब्यू pay. है क्या? मोहम्मद हाँ अली का डेब्यू है? हाँ, डेब्यू होगा। और इन्होंने ऐसा एक लग और रहा है मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में देखा है मोहम्मद अली को। आई थिंक ही हैज प्लेड इन अदर फॉर्मेट फॉर पाकिस्तान, मे बी या T20 समथिंग। या या सॉरी, गो ऑन। एंड एक और प्लेयर है इनका हुरैरा करके, जो ओपनर बहुत अच्छा है, उसके अमेजिंग स्टैट्स है डोमेस्टिक में, हाँ, 915 रन। 22 ईयर ओल्ड या। हाँ, उसको भी उन्होंने स्क्वाड में रखा है, बट दे आर बैकिंग साइम अयूब। एंड हम्म। आई थिंक ऑल पेस अटैक होगा। अबरार को अगर नहीं खिलाए तो आई विल बी डिसअपॉइंटेड, बट आई थिंक सलमान अली आखा is going to be their only spinner. I think already they've announced the 11 also. या मैं हाँ तो वही चेक कर रहा था, 11 में तो आई थिंक मुझे याद है कि अबरार है मेंशन्ड। okay, so if सो Abrar is there तो मतलब it's a good thing, but otherwise there is a lot of responsibility on Salman Ali Agha, and I think this is going to be Salman एक्चुअली Ali शिखर Agha. अबरार नहीं है, यू आर राइट मैन, इन्होंने फिर से वियर्ड हरकत कर दी, अबरार को नहीं खिलाया एज यूजुअल। हाँ, तो it's तो an all pace इट attack इज एन ऑल plus पेस Salman अटैक Ali एंड Agha. सलमान अली, इट इज शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अली हम्म। एंड खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद भी मेरे लिए नया नाम है, मैं नहीं ओके, पता है खुर्रम कौन है। शहजाद आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में खेला था, एंड रिसेंटली एक वीडियो आया था जिसमें वो बाबर आजम को बोल्ड कर रहा था। मैंने एक्स पे देखा था ये वीडियो। हम्म। तो शिखर, ओके। दोनों ही टेस्ट मैचेस में बारिश का थोड़ा सा पार्ट रहेगा ऐसा बोला जा रहा है, तो क्या पता इसलिए इन्होंने इसलिए पेस अटैक लिया हो कि उनको लग रहा है कि कंडीशंस ड्राई नहीं होंगी, बार बार बारिश होती रहेगी, थोड़ा मॉइस्चर रहेगा। हाँ, हो सकता है ये एक बट रीजन। बांग्लादेश ने ऑल पेस अटैक नहीं लिया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि हम्म। बांग्लादेश क्या कर रही है अपनी बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने के लिए। उन्होंने शाकिब और मेहदी हसन मिराज, सो मेहदी हसन मिराज इज गोइंग टू बैट एट नंबर 8, एंड देन ही दे इज विल माय हैव। फेवरेट प्लेयर फ्रॉम देयर साइड बाय द वे, ही कैन डू बोथ, ही कैन डू एनीथिंग, मेहदी हसन मिराज। और ताशकिन तो इज नॉट अवेलेबल, तो मुझे लगता है हम्म। शौरीफुल और वो जो नया बॉलर आया है नाहिद, वो दोनों या रहेंगे, और एक और पेसर शायद रहेगा। तो मेहदी देख। हसन रहेगा शायद, हाँ। हाँ,
तो देखते हैं हसन महमूद, मतलब सॉरी, हसन महमूद दिया, हसन हसन महमूद महमूद, है। हाँ। तो एंड आई तैजुल थिंक, भी खेलेगा, बिकॉज उसका कुछ रिकॉर्ड है कि हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे ज्यादा विकेट तैजुल ने लिए, तो तैजुल भी खेलेगा। ताइजुल का डाउटफुल है मुझे प्रतीक, अच्छा। बिकॉज इट्स दे आर आल्सो हाँ, बिकॉज थिंकिंग मेहदी कि हसन और शकीब दोनों प्रॉपर दो स्पिनर स्पिनर्स हैं, हैं, भले ही बैटिंग उनकी अच्छी है पर वो प्रॉपर स्पिनर हैं। हाँ। राइट। और उनका वो मोमिनुल ये सब भी डाल सकते हैं, दो तीन और प्लेयर्स भी यार स्पिन। पाकिस्तान, मैं 2 मिनट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात करना चाहूंगा कि उनका बहुत हम्म, बैड लक रहा है अभी लास्ट कुछ 2 सालों से। उनके जो टेस्ट मैच सीरीज रही हैं उनके बीच हम्म, में बहुत बड़े बड़े गैप रहे हैं। जैसे कि हम्म, अगर याद करें हम, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इनकी सीरीज हुई थी वो 6 महीने पहले जनवरी में हुई थी, 7 महीने पहले। हम्म। और उसके पहले भी इनकी जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में 5 महीने का अंतर था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जिससे बैट्समैन की कंसिस्टेंसी खराब होती है, स्पेशली समवन लाइक बाबर आजम जिस पे बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। हम लोगों ने देखा है उनका फॉर्म गिरा है हर क्रिकेट में, चाहे नहीं, वो आई ओडीआई डोंट हो थिंक टेस्ट हो। प्रतीक दैट्स द राइट एक्सक्यूज, क्योंकि इंडिया का भी अभी 7 महीने का गैप होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया का भी अभी कुछ 10 महीने का गैप होने वाला है सिंस टिल बीजीटी। तो ऐसे सबका ही चल रहा है, क्योंकि T20 एंड ओडीआई क्रिकेट और लीग्स का जो प्रचलन बढ़ गया है, तो आई थिंक ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। पाकिस्तान डिड वेल इन ऑस्ट्रेलिया, बट आई मीन दे शुड बट हैव वन इंटरेस्टिंग होगा एटलीस्ट। कि क्या बाबर आजम अपने स्लम्प फॉर्म से वापस आ पाएगा, बिकॉज इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी घर पे बांग्लादेश। और बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। व्यूवर्स को बता दूं, लास्ट 12 इनिंग्स में उनका हाईएस्ट सिर्फ 41 रन रहा है बाबर आजम का। और उसमें हम्म। से इंटरेस्टिंगली वो ऑलमोस्ट एवरी इनिंग्स 10 से 40 के बीच में आउट होता है। और पता नहीं बाबर क्यों, उनका आजम का स्टार्ट मैं मिलता देख है रहा पर फिर हूँ, कंसंट्रेशन वीक होता है। एक चीज मैं देख रहा हूँ अगेंस्ट स्पिनर्स ही इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। जैसे ही श्रीलंका जब वो गए हम्म। थे तो प्रभात जयसूर्या ने उनको काफी वो तंग किया कोहली को था। बहुत फॉलो करना पसंद करते हैं ना। हाँ, तो एग्जैक्टली कोहली जैसा ही ट्रेंड चल रहा है। और इनफैक्ट अगर तुझे याद हो तो लास्ट टेस्ट जो था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो ट्रेविस हेड एक्चुअली गॉट हिम 2 टाइम्स इन फर्स्ट इनिंग्स एंड सेकंड इनिंग्स। तो उनका भी मतलब वही चीज थोड़ा चल रहा है कि अगेंस्ट स्पिनर्स एंड क्वालिटी पेसर्स। पर हम्म। बांग्लादेश के पास मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्वालिटी पेसर है जो उनको आउट कर सकता है। सो अगेन इट विल बी डाउन टू शाकिब टू गेट हिम हम्म। आउट, और मेहदी हसन मिराज टू गेट हिम आउट। मतलब वही होगा, स्पिनर्स के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और अगर ताइजुल खेलते हैं, मैं श्योर हूँ वो बाबर को आउट करेगा, बट आई थिंक ही इज नॉट हम्म। प्लेइंग द फर्स्ट टेस्ट। बट ताइजुल विल बी ब्यूटिफुल। आई लव वॉचिंग दैट बैटल, ताइजुल वर्सेस बाबर, इफ इट हैपेंस। भाई मुझे तो वही लग रहा है कि शकीब फिर से डिसअपॉइंट करेगा एज अ बैट्समैन, एंड देन हम लोग सोचेंगे कि इससे अच्छा ताइजुल को खिला लेते हैं। हाँ, वो तो है। और देखते हैं शांतो क्या करता है, उसको वो नहीं भी पिक किया है, बहुत। जो तमीम इकबाल को नहीं पिक किया है ना इस स्क्वाड में, वो नहीं, उसका नहीं, खत्म हो तम गया क्या? नहीं, उसका उसको नहीं पिक किया है। एंड शांतो इज देयर एज अ ओपनर, और मुझे लगता है वो जो दूसरा ओपनर है वो है जाकिर हसन जो था, तो वो शायद ओपन करेगा। तो देखते हैं यार शांतो से। बांग्लादेश को यही समझ में नहीं आता क्योंकि इनके जो खिलाड़ी है ना सब एक्सपीरियंस्ड है, बहुत खेले हुए हैं, हम्म, पर ये परफॉर्म नहीं करते हैं। अब जैसे हम्म, देखा जाए तो सब हम जानते हैं प्लेयर्स, मोमिनुल अच्छा प्लेयर है, मुशफिकुर रहीम तो भाई बहुत पुराना प्लेयर है, शाकिब, मेहदी हसन राइट। मिराज, शांतो, लिटन दास, सब सब एक्सपीरियंस, पूरा टॉप ऑर्डर ज्यादा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान से। हम्म, पर परफॉर्मेंस आएगी कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। राइट, राइट। नहीं, वही डिसअपॉइंटिंग है एक्चुअली। मैं अभी बांग्लादेश का जस्ट टेस्ट स्क्वाड ही देख रहा था। तो मुझे लगता है मतलब समवन हैज टू, शदमन इस्लाम एक्चुअली है और जाकिर हसन दोनों ओपनिंग हाँ। बैट्समैन इन्होंने रखा हुआ है। और महमूदुल हसन जॉय है, ही इज वन ऑफ द बॉलर्स, ठीक है, बैट्समैन हु इज या। टेकन, जो न्यूजीलैंड में काफी अच्छा परफॉर्म किए थे। तो हम्म। शांटो, मेनली शांटो हैज टू स्टेप अप। मुझे लगता है अगर किसी को परफॉर्मेंस डिलीवर करना है, एंड लिटन का तो हम्म। आई डोंट नो व्हाट विल बी द मेंटल फ्रेम in which he will be there, but या। शांतो, लिटन, ये मिडिल ऑर्डर, रहीम, शाकिब, ये लोग का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाउ दे विल प्ले नसीम शाह, एंड दे हैव टू जस्ट मेक श्योर कि सलमान अली आगा जल्दी आ जाए अटैक में। इनको हम्म। मतलब इतना वो परेशान करते कि दे हैव टू ब्रिंग सलमान अली आगा, और कंडीशंस इनको चेंज करना पड़े, मतलब कि दे हैव टू थिंक बियॉन्ड द फोर पेसर्स। तब मजा आएगा ये टेस्ट मैच में, क्योंकि आई एम श्योर कि सलमान अली आगा को फिर ये लोग इजिली रन्स के लिए मारने का कोशिश करेंगे, लेकिन वहीं पे अपॉर्चुनिटी सलमान अली आगा के लिए भी बनेगी, क्योंकि एज अ लोन स्पिनर ही कैन पिक अप द विकेट्स, एंड ही इज अ सुपर बैट्समैन मेरे हिसाब से, तो जो स्वीप वो खेलता है।
उसके जो स्वीप शॉट्स है, मैं उसका तो दीवाना हूँ, सलमान अली आगा का। तो उस पे वो कभी कभी एलबीडब्ल्यू आउट भी हो जाता है बेचारा, लेकिन एटलीस्ट ही ट्राइज लाइक सूर्या कुमार यादव टू स्वीप द फियर्स आउट ऑफ हिम, कि वैसा मतलब। तो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बट प्रेडिक्शन पे आए तो आई वुड प्रेडिक्ट हम्म, साउथ शकील मैन। जिस तरह से उसने या ही वाज द लोन बीस्ट लास्ट टाइम जब पाकिस्तान में या टेस्ट मैच हो रहे थे, वो खड़ा रहता था बेचारा अकेला एक एंड पे। या सो ही विल बी माय प्रेडिक्शन फॉर मोस्ट रन्स। Mine too. I have also predicted same in your survey also. South Shakil and एक्चुअली मैंने सर्वे rightly. में अब्दुल्ला शफीक पिक किया है बिकॉज वो ओपनर है, बट यहाँ पे मैं अच्छा, डिफरेंट। हाँ अब्दुल्ला शफीक हो सकता है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने बहुत बड़े रन किए थे। हाँ, और उसका और इमाम का पार्टनरशिप बहुत अच्छा हुआ था। तो देखते हैं क्या होता है, बट मुझे लगता है साउथ शकील एक साल के अंदर ही शायद वाइस कैप्टन बन गया पाकिस्तान टीम का। हम्म, इट हैज बीन अ करेक्ट। फास्ट ग्रोथ, इट हैज बीन अ रियली फास्ट ग्रोथ, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम इसी टाइम अराउंड वो इंग्लैंड वाला सीरीज चल रहा था लास्ट ईयर, या मे बी एग्जैक्टली। 1.5 years इससे भी की। लेट था शायद, अक्टूबर या नवंबर में था जबकि। हाँ, तो वो टाइम फ्रेम जो उसका ग्रोथ है, मतलब टू फ्रॉम डेब्यू टू बिकमिंग अ वाइस कैप्टन, हम्म, आई थिंक पाकिस्तान है फाइनली रिवॉर्डेड। मतलब कि हमने देखा फवाद आलम के साथ क्या हुआ, कि उसको चार या पांच टेस्ट के फेलियर्स के बाद ही हटा दिया गया। तो फाइनली नाउ दे हैव प्लेस्ड दिस फेथ ऑन साउथ शकील और साइम अयूब को भी, जो जैसे शान मसूद ने उसके लिए बोला है। उसको तो बैक किया वो भी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मैं एग्री नहीं करता, बट आई एम गुड टू सी यंगस्टर को चांस दिया फिर से। हाँ, तो ये अच्छी बैक बात किया है। है। तो देखते हैं क्या होगा। और मुझे लगता है उन्होंने ऑलरेडी रिजवान को ये कर दिया है, बट मुझे लगता है इस या कंडीशंस सरफराज को में चाहिए। सरफराज बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट द प्लेस फॉर सरफराज। बट ठीक या है, आई थिंक वो वही। अनफेयर जजमेंट था एक्चुअली, हाँ। he looked very bad and ugly in Australia, the way he got out to those dismissals. But यहाँ पे आई थिंक इन सरफराज बॉलिंग इज में बेटर ऑप्शन। डेफिनेटली यार नसीम शाह बहुत डेंजरस रहेगा। स्पेशली अगर हाँ, याद हो तो उसने अपने डेब्यू पे ही हैट्रिक बांग्लादेश के अगेंस्ट ली थी, टेस्ट राइट। हैट्रिक। सो ओ, सो दैट ही विल सीम्ड बी द मैन। एजेस अगो, तब शायद वो 16-17 साल का था नसीम शाह। एंड एंड आई थिंक ही इज ऑस्ट्रेलिया। आवर फेवरेट क्रिकेटर, लाइक अपने पूरे क्रिकेट केयर ग्रुप का फेवरेट पाकिस्तानी क्रिकेटर है हाँ, तो। एंड द वे द ही विल शो लॉट ऑफ फाइट विद द बैट, जैसे हमने श्रीलंका में देखा था, उसने साउथ दैट्स शकील हिज के बेस्ट साथ वो क्वालिटी। पार्टनरशिप किया था उसने। तो ही इज गोइंग टू शो लॉट ऑफ फाइट विद द बैट आल्सो। तो आई एम इंटरेस्टेड टू सी हिज बैटिंग आल्सो अलोंग विद हिज बॉलिंग, कि नसीम शाह कैसे बैटिंग करते हैं। बट मैन ऑफ द मुझे सीरीज यार अगर 2-0 इसमें लग रहा है। मुझे यार 2-0, अच्छा। मुझे भी लग रहा है 2-0। और मुझे लग रहा है एक टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, मुझे लग रहा है 1-0 होगा। एंड मुझे लग हाँ, रहा है क्योंकि वो बैटिंग फ्रेंडली हाँ, तो रहेंगे। और मुझे लग रहा है सलमान अली आगा is going to be the player of the series. But yeah, that's my prediction for the series. Yeah, thanks, Shikhar. It was fun to review Yeah, the upcoming test series. thank you guys, and let's see, ये सीरीज में भी मिलते रहेंगे हम लोग आगे। और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिकेट कैवियर। थैंक यू एंड टेक केयर, गुड नाइट।